Hello 12th class political science students. Welcome back to our channel. As you all know that we have completed two parts of the chapter, right? And today we are going to do third part of the chapter, that is era of one party dominance. So till now we have discussed basically the situation of Congress party, and we are also able to know that what were the circumstances in which Congress was able to get that much support. Along with that, we have also discussed that what were the changes in the pattern of voting system in our country. Right? We have seen that firstly ballot papers were there. And after a lot of changes, right now we are having EVMs in our country. We have seen that all of the major nations of the world, they have also accepted that yes, India has successfully conducted its first election, and you can say we have controlled all those wordings, and we have given a quick answer to all those questions which were showing that India will not be able to sustain with democracy, because successfully we contested our election and people also accepted the result of the first election of our country. Right, we have understood the era of one party dominance also. But in today's video, what we are going to study, we will study communist victory in Kerala. Although Congress was able to frame government on central level also and in lot of states also, right? But what will happen after the election of 1952? Again, there were election in 1957, right? But here was the problem. What was the problem? That Communist Party was able to make the government in Kerala. So let us discuss it. What was it? Communist victory in Kerala. As early as in 1957, the Congress Party had the bitter taste of defeat in Kerala. मतलब बहुत करारी हार उन लोगों को डिफीट का फेस करना पड़ा. In the assembly elections held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in Kerala legislation. मतलब जब केरला में स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शंस हो रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने लार्जेस्ट नंबर की सीट को विन कर लिया. द पार्टी वॉन 60 आउट ऑफ 126 सीट्स, मतलब 60 सीट्स उन्होंने जीत ली. एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स ऑल्सो. इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं, अब देखो गवर्नमेंट बनाने के लिए यू शुड हैव मेजोरिटी ना. मेजोरिटी मीन्स होता है मोर देन हाफ, कि अगर उतने आपके एमएलए हैं, सपोज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, तो आपके हाफ एमएलए होने चाहिए, मोर देन हाफ एटलीस्ट. और अगर आप सेंट्रल, अगर आप लोकसभा की बात करें, यू शुड हैव मोर देन हाफ ऑफ एमपीज, राइट. लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को क्या मिला था, 60 ऑफ दी आउट ऑफ 126 सीट्स, राइट. और उसके बाद हालांकि इससे तो गवर्नमेंट नहीं बननी थी, क्योंकि 60 का डबल तो 120 होता है, और आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए था, 126 के हाफ में जब आप +1 करते हो, राइट. तो अब देखो यहाँ एटलीस्ट उनको 63 और 64 सीट्स चाहिए थी, राइट. उसके बाद क्या हुआ, 64 एटलीस्ट. बट अभी इनको क्या किया, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया. सो नाउ देयर स्ट्रेंथ वाज 65 एंड दे वर एबल टू मेक द गवर्नमेंट. The governor invited EMS Namboodiripad, the leader of Communist Legislature Party, to form the ministry. अब देखो क्या होता है, जब अगर कोई एक सिंगल पार्टी, हालांकि ये स्टेट में आप लोगों ने जब 11th क्लास में स्टडी किया होगा पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, तो आप लोगों ने स्टडी किया होगा उसमें कि गवर्नर की पावर क्या होती है, कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, सो दैट पार्टी विच इज एबल टू गेट मेजोरिटी, दैट पर्टिकुलर पार्टीज लीडर इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. बट यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट एबल टू फ्रेम द गवर्नमेंट, बट वेन 5 independent candidates joined it, so the governor invited EMS Namboodiripad, who was the leader of Communist Party, और उनको इन्वाइट किया कि वो अपनी गवर्नमेंट बना ले. For the first time in the world, the Communist Party government had come to power through democratic election. और ये वर्ल्ड का पहला एग्जाम्पल था जहां कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट में आई थी, और वो भी पूरी डेमोक्रेटिक वे से, राइट. आपने कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारी टर्म्स ऑलरेडी पढ़ी होंगी, है ना. तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी विद इन डेमोक्रेटिक मेथड इट हैज गॉट द पावर्स, राइट. सो ऑन लूजिंग पावर्स इन द स्टेट, द कांग्रेस पार्टी बिगिन अ लिबरेशन स्ट्रगल.
against the elected government. अब देखो क्या होता है, when Congress was having majority almost in all of the major parts of the country, और एकदम से उनको डिफीट को फेस करना पड़ा, so they were not able to accept it, और उन्होंने कहीं ना कहीं लिबरेशन स्ट्रगल शुरू कर दी, मतलब फ्री करवाने के लिए कि केरला को कैसे कम्युनिस्ट पार्टी से फ्री कराएं, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, द सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड come to the power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. अब देखो, इतनी बड़ी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई एक स्मॉल लेवल की पार्टी, क्योंकि कंट्री की उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी दैट वाज कांग्रेस ओनली, तो अगर कोई पार्टी पावर में आई है, सो यू शुड हैव दैट मच इन योर मैनिफेस्टो कि आप अट्रैक्ट कर सको लोगों को। एंड व्हाट वाज द बेसिक रीजन, उनके जो मैनिफेस्टो में था, कहीं ना कहीं जब वो इलेक्शन के लिए प्रमोट कर रहे थे खुद को, तो वो क्या था, रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स, कि हम बहुत ज्यादा रेडिकल चेंज लेके आएंगे, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बनाएंगे फॉर केरला। The communist claimed that the agitation was led by vested interest and religious organization. अब फिर क्या होता है, कम्युनिस्ट ने क्या क्लेम किया कि एजिटेशन किसके वजह से हो रहे हैं, बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि अब यहां से क्या हुआ, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, सो कांग्रेस पार्टी गेट द चांस, क्योंकि उनके खिलाफ ना उन्होंने जो प्रॉमिस किया था दैट वाज फॉर रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स, राइट। लेकिन कम्युनिस्ट ने क्या किया, द कम्युनिस्ट क्लेम दैट द एजिटेशन, कि उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कुछ एक इंटरेस्टेड ग्रुप है बेसिकली जो रिलीजियस पर बेस्ड है, वो ऐसे ही लोग हैं रिलीजन के ऊपर जो बेस्ड है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे थे अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, एंड कांग्रेस टुक इट एज अ चांस। उन्होंने क्या कर दिया, द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं से क्या किया फिर, जो कांग्रेस पार्टी थी दैट टुक इट एज अ चांस, है ना, और अंडर आर्टिकल 356 उन्होंने क्या कर दिया, केरला की कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया। अब देखो ये क्या होता है बेसिकली, अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो ना, तो इमरजेंसी बेसिकली हमारी कंट्री में 3 आर्टिकल्स के अंडर मेंशन होती है, 352, 356 एंड 360। आर्टिकल 352 के अंदर जब इमरजेंसी लगती है, सो इट इज कंसीडर्ड कि कंट्री में ना कहीं आर्म्ड रिबेलियसनेस हो गई है, वायलेंस हो गई है, और उसकी वजह से ना कंट्री का जो रूल रेगुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, मतलब दैट इज द सिचुएशन ऑफ होल ऑफ द कंट्री बेसिकली, सो दैट विल बी अंडर आर्टिकल 352। But suppose if the government is saying that the rule of any one particular part of the country, one particular state is not according to the constitutional values, तो वहां पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर एरिया में इमरजेंसी लगाने के लिए जो आर्टिकल यूज होता है दैट इज आर्टिकल 356। और इस आर्टिकल का हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है, क्योंकि जब भी लगता है ना, जो कहीं ना कहीं पावर वाली पार्टी है वो इस आर्टिकल का मिसयूज करके अपने एंटी वाली गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं डिसमिस करने की पॉसिबिलिटी रख सकती है, एंड दिस हैज मिसयूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। और यहां पर भी सेम हुआ, यहां पर भी आर्टिकल 356 का यूज हुआ, राइट। और उसके बाद फिर क्या किया, द कम्युनिस्ट पार्टी वाज डिसमिस्ड। एंड वन मोर प्रोविजन इज देयर फॉर इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारी कंट्री में कभी आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। गॉट इट? So, the decision proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency power. अब आपको ये भी याद रखना है कि ये हमारी कंट्री में फर्स्ट एग्जाम्पल था जब हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज था। आई होप द होल स्ट्रक्चर, होल सिचुएशन ऑफ केरला इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब देखो ये नंबूदरी पादी क्या कर रहे हैं, ही इज लीडिंग अ प्रोसेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स आफ्टर हिज मिनिस्ट्री वाज डिसमिस्ड, है ना, फ्रॉम ऑफिस इन त्रिवेंद्रम इन अगस्त 1959, यानी उनकी पार्टी को जब डिसमिस किया, सो ही इज लीडिंग अ प्रोसेशन, ओके। और कहीं ना कहीं चीजें ये भी शो कर रही थी कि कांग्रेस ने एंटी डेमोक्रेटिक वे से कहीं ना कहीं जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी उसको डिसमिस कर दिया। सो नाउ लेट अस सी सोशलिस्ट पार्टी। अब ये सोशलिस्ट पार्टी एक्चुअली में बेसिकली थी क्या,
सो फॉरवर्ड टू अ मास पार्टी, राइट। अब देखो, लेट अस रीड इट। द origins of socialist party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the predominance era। अगर आप देखते हो, ओरिजिन देखते हो सोशलिस्ट पार्टी का, वो बेसिकली आपको कहां से मिलता है? हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है, यानी इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम पीरियड था। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म विद इन द कांग्रेस इन 1934। अब आपको ये याद रखना है, जो हमारी कंट्री की पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इट वॉज फ्रेम्ड विद इन द कांग्रेस ओनली, इट वॉज फॉर्म विद इन कांग्रेस ओनली एंड द ईयर वॉज 1934। And who were the people? By a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress। अब देखो कौन से लोग थे? बेसिकली जब आप कंसिडर करते हो सोशलिस्ट पार्टी, तो देखो सोशलिस्ट इट्स बेसिकली सोशलिज्म। सोशलिज्म इज द आइडियोलॉजी, और जो पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करती, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। तो बेसिकली सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म इज दैट आइडियोलॉजी विच डील्स विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली कि आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, आपकी कंट्री में लैंड कैसे डिवाइडेड है, लेबर कैसे डिवाइडेड है, कैपिटल कैसे डिवाइडेड है ना, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे है, मतलब क्या उस पर किसी एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल है? लेकिन सोशलिस्ट वाले लोग क्या चाहते हैं? दैट ऑल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर चलती है सोशलिस्ट पार्टी, यानी किसी एक पर्सन का कंट्रोल ना हो जाए। बेसिकली देखो सोशलिज्म तो इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं सभी के बेटरमेंट के लिए आपको डील करती हुई दिखती है। सो इस जो पार्टी की रूट्स थी वो आपको कब मिलेंगी? इन 1934 एंड विद इन द कांग्रेस ओनली। अब उसके बाद और देखो एक टर्म और यूज हुई, रेडिकल। रेडिकल पर्सन कौन से होते हैं? रेडिकल बेसिकली इट्स द ग्रुप, आपने सुना होगा रेडिकल नेशनलिज्म। रेडिकल क्या होती है? एक्सट्रीमिज्म जब किसी चीज की हो जाती है। रेडिकल मतलब जो कंप्लीट चेंज चाहते हैं सोसाइटी में। तो अब ये कौन से लोग थे? अ मोर रेडिकल एंड ईगलिटेरियन। अब ईगलिटेरियन क्या होती है? जो कंप्लीटली इक्वालिटी पर बेस्ड होती है, उस थियोरी को बोलते हैं ईगलिटेरियन। ऐसी अब जो स्टेट इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, दैट इज ईगलिटेरियनिस्ट स्टेट, राइट। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस के अंदर एक पार्टी बनी, दैट वाज सोशलिस्ट पार्टी, वैसे ही क्या किया, अब कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि ना कांग्रेस की भी मेंबरशिप ले ले और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी मेंबरशिप ले ले। बट कांग्रेस ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, क्योंकि पार्टी के भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। एंड व्हाट डिड दे अमेंड? दैट एनी मेंबर ऑफ द पार्टी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप। यानी अगर आप कांग्रेस के मेंबर तो आपके पास ड्यूअल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी आप ड्यूअल मेंबरशिप का मतलब आप एक टाइम पे दो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते, राइट। उसके बाद दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। अब देखो रूट्स कब हुई? 1934 में, एंड दे वर वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस ओनली। बट जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, सो व्हाट डिड दे डू? इन 1948 दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट एंड बेसिकली दे फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टी। और पार्टी का नाम क्या था? सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। अब उसके बाद द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। अब लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या हुई, जो इसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी इसके सपोर्टर्स में। Although the party had presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in few pockets। अब देखो क्यों हुई डिसअपॉइंटमेंट? क्योंकि इसकी प्रेजेंस तो सारी की सारी कंट्री में थी, बट इसको जो विक्ट्री मिली वो कहीं ना कहीं बहुत फ्यू स्टेट्स में थी, दैट वाज ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। गॉट इट? अब उसके बाद द सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजीज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म व्हिच डिस्टिंग्विश्ड देम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम कम्युनिस्ट। अब देखो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे 1 मार्क में 2 मार्क में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको देखो ये पता होना चाहिए बेसिकली कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वो क्या था, सोशलिस्ट और पार्टी से डिफरेंट क्यों थे। अब देखो सोशलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब वेयर योर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ओनली।
एंड सोशलिज्म वही जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल होते हैं बाय द स्टेट। और ये क्या थी विच डिस्टिंग्विश, जो डिफरेंट थी किससे, बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम कम्युनिस्ट, दोनों से क्या थी, डिफरेंट थी। अब देखो डिफरेंट कैसे थी, दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। अब इस चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना, जो सोशलिस्ट को फॉलो करेंगे डेफिनेटली दे विल प्रोटेस्ट, दे विल बी अगेंस्ट इन द आइडियोलॉजीज ऑफ कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म को फॉलो करेगी वो उन सारी आइडियोलॉजीज को अगेंस्ट, उन सारी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिसअग्री करेंगे वो लोग। और यही वो रीजन था, जो सोशलिस्ट पीपल थे वाई दे वर नॉट सिमिलर टू द कांग्रेस पार्टी, उनके दिमाग में क्या था, जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं फेवर कर रही थी कैपिटलिस्ट को। अब देखो सोशलिस्ट, मैंने आपको बताया सोशलिज्म क्या होता है, जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट कंट्रोल करता है। लेकिन अब जो एक टर्म आपने पढ़ी है कैपिटलिस्ट, अब ये कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो द आइडियोलॉजी विच डील्स विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट आप किस स्टेट को कंसीडर करते हो, जहां स्टेट आपकी सिर्फ बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है। स्टेट आपको, और जो जैसे देखो आप इंडिया का एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन यू इट विद एग्जांपल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। आप इंडिया का एग्जांपल लेते हो, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स आर देयर, है ना, कॉलेजेस आर देयर, यूनिवर्सिटीज आर देयर, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आर देयर, हॉस्पिटल्स आर देयर, राइट। Everything is privatized also, but along with that what is happening, government knows very well that all of the people of the society, they are not able to get all this facility on that much high prices. इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, we are having all of the government institutions as well. आपके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं, but those people who are not able to afford the fee of those schools, they can send their children to government schools. हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बट ऑल ऑफ द पेरेंट्स, ऑल ऑफ द मेंबर्स हु आर नॉट एबल टू गेट ट्रीटमेंट इन दैट मच, यू कैन से इन दैट मच कॉस्टली हॉस्पिटल्स, दे कैन मूव टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लेकिन एंड व्हाई वी आर डूइंग दैट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। बेसिकली इंडिया इज हैविंग मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी, है ना, बट हम सोशलिज्म को, बिकॉज वन वर्ड इज देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सोशलिस्ट, राइट। और जिसको हमने कब ऐड किया था, बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट वाज इन 1976, राइट। बट उसके अगेंस्ट में जो आइडियोलॉजी होती है ना सोशलिज्म के अगेंस्ट में, दैट इज कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म बेसिकली क्या होता है, दो स्टेट विच कंसीडर दैट स्टेट विल वर्क एज द सिक्योरिटी स्टेट। अब सिक्योरिटी स्टेट क्या होता है, कि जो आपकी सिर्फ बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है, विद इन द स्टेट क्या हो रहा है, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करता। जैसे कि यूएसए, अब वहां पे क्या होगा, वहां पे प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा कि गवर्नमेंट को हेल्थ में, एजुकेशन में इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली इट्स द आइडियोलॉजीज ऑफ, इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। और इसी वजह से क्रिटिसाइज किया सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को। Why? Because the people of Socialist Party, they believed that Congress Party was favoring capitalists and landlords and for ignoring the workers and the peasants. और इसलिए क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी फेवर कर रही थी या तो कैपिटलिस्ट को या फिर लैंडलॉर्ड्स को, और इस वजह से जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा था। बट द सोशलिस्ट faced a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society. अब देखो, लेकिन प्रॉब्लम कब हुई, देखो सोशलिस्ट जो पार्टी थी ना, सोशलिस्ट पार्टी, उसने कहीं ना कहीं खुद को डिफरेंट शो करने की कोशिश की फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, राइट। और उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स की पार्टी है, उनको फेवर कर रही, कैपिटलिस्ट की पार्टी है। बट उनको डिलेमा में कब डाल दिया गया, सोशलिस्ट को उनको डिलेमा कब फेस करने पड़ी, जब 1955 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया अपना गोल, और वो गोल क्या था, दैट द गोल ऑफ कांग्रेस विल बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, कि जो कांग्रेस है अब वो सोशलिस्ट पैटर्न पे वर्क करेगी। Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. अब देखो, आप जिस चीज को लेकर आप कहीं ना कहीं मैटर बना रहे थे, मान लिया सोशलिस्ट पार्टी वाले लोग, है ना, और कांग्रेस ने वही सारी चीजें एड ऑन कर दी, तो मतलब नाउ द सोशलिस्ट पार्टी दैट वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन विच इट कुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, और ये अपने आप को सेपरेट शो कर ले कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस के जिस पॉइंट को, जिस वीक पॉइंट को उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, अब कांग्रेस ने अपनी वीकनेस को कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया।
और कांग्रेस ने क्या विजन प्रोवाइड किया? एक सोशलिस्ट विजन प्रोवाइड करवा दिया। गॉट इट? सो some of them led by Ram Manohar Lohia increased their distance from the criticism of the Congress party. Some others like Ashok Mehta advocated a limited cooperation with Congress. अब इस वजह से अब लोगों में डिफरेंट आइडियाज भी डिफरेंट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोग क्या थे, उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ दैम लेड बाय राम मनोहर लोहिया, जो सोशलिज्म के बहुत बड़े हमारी कंट्री में फॉलोवर है, तो इन्होंने क्या बोला, इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने अपनी डिस्टेंस इंक्रीज कर ली अगर कोई कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो। दूसरे जो पर्सन थे, फॉर एग्जाम्पल अशोक मेहता, इनका नेम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अशोक मेहता, जब हमारी कंट्री में पंचायती राज आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो अशोक मेहता एडवोकेटेड आ लिमिटेड कॉपरेशन विद द कांग्रेस, और उन्होंने क्या बोला कि हम एक लिमिटेड कॉपरेशन करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड reunions leading to the formation of many socialist parties. These included the किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब देखो क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्प्लिट मतलब क्या हो रहा था, स्प्लिट मतलब होता है जब पार्टी का डिवीजन होता है, राइट। मतलब एक पार्टी थी, देखो रूट सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट पार्टी थी दैट वाज इन द कांग्रेस ओनली। 1934 में रूट्स कहीं ना कहीं अराइज होनी शुरू हुई थी। उसके बाद इसी पार्टी से क्या हुआ, इसी पार्टी से और पार्टीज भी स्प्लिट होना, सेपरेट होना शुरू हो गई, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस एम जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। ये कुछ फेमस हमारी कंट्री के लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं इन्होंने सोशलिज्म को पॉपुलर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क किया था। गॉट इट? मैनी पार्टीज इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एंड दी जनता दल। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर। बेसिकली जनता दल इज हैविंग टू पार्ट्स, यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेक्युलर। ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी। ये जो सारी की सारी आप पार्टी देख रहे हो, तो देखो जनता दल, जब जनता दल देखते हो ना, कहीं ना कहीं बीजेपी का ओरिजिन भी वहीं से है। तो ये सबके ओरिजिन कहां से है? फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टी ओनली। गॉट इट? सो हियर इज आचार्य नरेंद्र देव, हु वाज ही? फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मतलब जो फाउंड करने वाले प्रेसिडेंट थे उनमें इंक्लूड है ये। जेल सेवरल टाइम ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, कई बार जेल भी गए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। एक्टिव इन पीसन मूवमेंट, अ स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड द सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देखो जब सोशलिस्ट पार्टी स्प्लिट हुई तो सोशलिस्ट पार्टी में से ही फॉर्म हुई कौन सी पार्टी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और ये क्या बने उस पार्टी के? कहीं ना कहीं क्या थे? लेड, इन्होंने ही लेड किया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को। होप these two paragraphs are clear to all of you that basically what was the situation in Kerala, how Communist Party was able to overcome, and how Congress tried to misuse Article 356 in 1957. Right? Along with that, you are also able to understand, I think, Socialist Party, है ना? It means we are able to see origin that is from Congress only, and it has got a lot of splits also. And all of the major party we are able to see they are having their origin from the Socialist Party only. Hope till now everything is completely clear to all of you. But now, till now, if you are having any kind of doubt and query, feel free to ask your question in comment section. Next part, we will do that what were the other concern of Indian politics. है ना? That next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.